जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम सभी को. Good morning and happy Sunday. I, Divya Momaya, on behalf of entire team of mentorship program of Jito Nahar JBN, welcome you all to this second Meet the Mentor series of mentorship program of Jito. As we all know, role of mentor, Sarthi, is utmost important from ancient times. Even global leaders like Steve Jobs, Elon Musk have mentioned the importance of mentor in their lives. One of the most effective way of changing your life is to find right people who always have grown and who can guide you on that journey. So every month we have this mentor program from different industry, and you get a platform to ask focused questions and get the fireside prompt answers from our mentors. मीट द मेंटोर इज एन इनिशिएटिव. मैं थोड़ा अभी मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, मीट द मेंटोर सीरीज क्या है, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी एंड देन आई विल हैंड ओवर to Sanjay ji for the session ahead with KL Jain sir, who is our esteemed mentor for the day. So MTM, Meet the Mentor, is an initiative of JBN Mentorship Program, and other initiatives are one-on-one mentoring, group mentoring sessions with the mentors across cities, industries, verticals, and even countries through result-oriented structured process. I'm super excited to get the fireside answers to number of questions received from all the participants and viewers today from our for our esteemed mentor, Shri KL Jain ji. So are we all ready for this wonderful interaction? So let's start this Meet the Mentor session for today. Let me take the opportunity to introduce the mentor for the day, Shri KL Jain ji. Shri KL Jain ji, who has been a business tycoon and icon in the Indian business world today. He started his business journey with humble beginning as first generation entrepreneur in 1967. And today, KLJ Group is world's largest manufacturer and market leader in plasticizers, polymer compound, and chlorinated paraffin segment. They have ultra modern manufacturing facilities in Silvassa, Bharuch, Thailand, and Qatar. Family business is led by his three sons, Kamal Jain ji, Hemant Jain ji, and Pushp Jain ji. Today, KLJ Group is leading various social activities supporting multiple Jain organizations, both with funds and active volunteerism. Their products are key ingredients for industries like footwear, wire, cables, medical equipments, automotive, molding, packaging, sports, electrical and electronics. They have multiple residential and commercial real estate projects in Delhi NCR, taking care of housing needs of thousands of families. Shri KL Jainji is the first generation family business leader, managing empire having turnover of more than 6,000 crore. Welcome Jain Saab to this MTM session. And now let me introduce our moderator for today, Shri Sanjay Jainji. Shri Sanjay Jainji is the managing director of TT Limited, a company which is listed on BSE NSE. He's a gold medalist from IIM Ahmedabad, and apart from being a cost accountant and a company secretary, awarded as Udyam Ratna Award in 2010, he is leading n number of committees on various trade bodies. Currently, he is our Nahar JBN chairman, heading JBN nationally and internationally. So welcome Sanjay ji to this MTM series. Now the topic for today is win the game of growth from in the family businesses, and we have received more than 120 responses, questions, queries, and challenges. The responses received from more than 37 cities, and if I give you the statistics, around 20 youth members have asked the questions, 70, 75 odd patron members, 25 CP, FCP members, and more than 20 from non-JITO members as well. So as many questions were so similar to each other that we categorized the questions with similar challenges which the family businesses faces and shortlisted questions for the benefit of you all. Also, we have been live on YouTube, so you can watch this MTM series, and it also will be available in the recorded mode later on. So if I have seen further, it's by standing on the shoulders of giant, that is said by the Isaac Newton. So we all at Jito are really blessed to have giant business leaders with us, and who are there to guide, mentor, and handhold us
in our journey of entrepreneurship. So with this, it's my absolute honor to invite our moderator, our chairman, Shri Sanjay Ji Jain, and our esteemed mentor for today, Shri KL Jain Ji. So over to you, Sanjay Ji, for the session ahead. Thank you. थैंक यू दिव्या जी, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। कन्यालाल जी पटावड़ी जी जैन साहब को मेरा प्रणाम। उनको जय जिनेंद्र कहना सही नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समय निकाल कर हमारे सेशन में ज्वाइन किए। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स को कि लिंक में कोई टेक्निकल एरर आने के कारण, जो हमें आज भी याद दिलाता है कि सब कुछ डिजिटल नहीं हो सकता है पोस्ट कोविड भी। The physical touch is still very important, but I really thank the team जिन्होंने फ्लैट 10 मिनट में कम से कम ऑल ओवर वापस सब कुछ रिसर्कुलेट किया नए नंबर को करके immediately, can still people are joining in, we are still sending messages, so thank you very much। कई लोग जो यहाँ नहीं भी ज्वाइन कर सके, यूट्यूब में भी ये है रिकॉर्डिंग और ये आगे भी रहेगी, तो ये लिंक जो है यूट्यूब में हमेशा के लिए, बिकॉज सबका समय का अलग अलग वो रहता है। So without wasting any more time, let's go on to the man of the moment and ask him how he, Kanyalal ji Sa, has been a man who has not only built a business, but he has also grown it into a very effective family business with 3 wonderful sons stepping in and joining him, and now practically running the business as he takes more time in social and other commitments. As I said earlier, unofficially, as I have known him, I have not known him personally very well, but जितना भी मैंने सुना, और जब आदमी को आप पर्सनली नहीं जान के भी उनके बारे में इतना जानते हो, वो अपने में भी एक परिचय है इंसान का कि he is a truly a 360-degree person. And however, today we will be only touching upon one of the perspective of his life, how he built and made a successful family business, what are the learnings। और जैसे हम सब जानते हैं, गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन गलतियों से सीख कर और हम उनके अनुभव कि क्या चीजें उनके हिसाब से सही हुई, क्या गलत हुआ, और क्या अगर हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे। सबसे पहला सर आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा जो हमारी युवा पीढ़ी से आई है और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एंड आई थिंक सो आपके सन्स में भी ये सवाल जरूर मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, चाहे वो माने या ना माने, कि when you have such a successful father, uncle, next generation, senior generation in the business, तो जो नई पीढ़ी आती है, they don't know how to share the ideas, how to convince and bring about change। तो आप ये बैलेंस कैसे मेंटेन हो कि नई पीढ़ी को ऐसा ना लगे कि उनको वही करना पड़ रहा है जो वो कह रहे हैं, एल्डर्स कह रहे हैं, तो कैसे आप ये बैलेंस मेंटेन किया और क्या आप लोगों को कहना चाहिए? Should I continue? Yes, please. सादर जय जिनेंद्र, मैं मेंटर नहीं हूं, आपका सहभागी सहयोगी दोस्त हूं। हम सब एक धर्म को मानते हैं, ये हमारा आपस में कोलिंक है, तो मेंटर तो पता नहीं कौन कौन होंगे, मैं आपका एक साथी हूं जो अपनी बातें शेयर करूंगा आपसे। सादर जय जिनेंद्र, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम जैन कुल में पैदा हुए। जैन कुल में पैदा होने के कारण आधी बातें तो हमारी बिजनेस की ऐसे ही सोल्व हो जाती हैं कि हमें सिखाया गया है कि मन पे कंट्रोल कैसे करें, संयम कैसे रखें, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कैसे करें। व्यापार में कामयाब होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये जो एक समता की साधना है, सम्यक की साधना है, ये व्यापार में बहुत काम करती है। हम अपने काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से ग्रहित नहीं होकर के सम सोचें तो आधे बिजनेस की प्रॉब्लम तो सोल्व ऐसी ही हो जाती है। और परिवार को साथ रखने के लिए भी, परिवार भी साथ रह सके, उसके लिए भी हमें हमारे जैनिज्म की ये सम्यक की साधना बहुत 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 हमें रत्ता दिखाती है कैसे हम बच्चों को साथ रखें। जब मैं बड़ा हुआ, मैं पिताजी मेरे अकेले थे, मैं अकेला बैठा था पिताजी का, इस कान से परिवार देखा नहीं। मैंने वो दिन भी देखे हैं अकेला काम कैसे करना, और आज वो दिन भी देखे हैं कि साथ में काम कैसा करना। और खासकर जिस आदमी ने, व्यक्ति ने 2 पीढ़ी तक अकेले काम किया हो, उसको और बच्चों के साथ करने
एक पार्टनरों के साथ काम करना आसान है, बच्चों को साथ लेके चलना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है यदि हम बात को समझ लें तो। औरों से निभाना कई बार बहुत सरल होता है, अपनों से निभाना कई बार हमें एक बैरियर अपनी खुद की बना लेते हैं, वो बैरियर नहीं बनानी चाहिए। हम डायलॉग कैसे चालू रखें, ये डायलॉग व्यापार में आने के बाद नहीं, बचपन से हमारा बच्चों के साथ डायलॉग कैसा है, संवाद कैसा है उनका, हम क्या आपस में बात करने की स्थिति हमारी है या नहीं, या हम खाली बाप बेटे ही बन के रह जाते हैं, डरते हैं और डराते हैं, एक दूरी रखते हैं। दूरी हमारी शुरू से दूर हो जाए यदि है तो आगे व्यापार में भी बात करने में तकलीफ नहीं आती। हम जब दूरी बना लेते हैं अपनी, मैं बाप हूं वो बेटा है, बेटा भी बना लेता है, इनको कुछ आता नहीं, पुराने जमाने के आदमी है ये हमारी दूरी, हम बात करते रहे शुरू से, यदि अपनी बातें बचपन से शेयर करते रहे तो कठिनाई कम आती है। मुझे आज भी याद है जब हम बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते थे तब भी मैं अपने बच्चों से अपनी बैलेंस शीट डिस्कस करता था, अपना व्यापार डिस्कस करता था, ये हमने किया, ये हमने नहीं किया। उससे क्या होता था, उनको हमारी आपस की दूरी, व्यापारिक दूरी भी और व्यापार की दूरी भी और समझ की दूरी भी कंपैरेटिवली कम होती थी। जितनी दूरी हमारी कम होगी उतना हम साथ चलना हमारा सुगम होगा। मैंने अपने आप में यही पाया और मुझे बच्चों के साथ करने के अंदर उल्टी तकलीफ नहीं हुई, जो मेरा एकाकीपन था वो खत्म हुआ। हम कभी आज भी 3 बेटे और एक बाप नहीं, हम 4 आदमी हैं, हम 4 आदमी हैं और हर एक को साथ में काम करने का एक आनंद है। हर आदमी, हम हर एक को स्पेस भी देते हैं, हर अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सके, अपने नए आइडियाज को हम उनको अप्रिशिएट कर सके तो काम बढ़ने में तकलीफ नहीं आती। यही नहीं माने कि मैंने काम किया था पहले तो मैं ही बड़ा बादशाह हूं, मेरे बच्चे नए पैदा हुए हैं, उनको नई ज्यादा जानकारी है, वो मेरे से कुछ बेहतर है, मेरे ज्यादा पढ़े लिखे, ये भाव आपके मन में आता है तो सब बातें ठीक हो जाती। मैं ऐसा मानता हूं और मेरे जैन संस्कारों ने मुझे इसके लिए बहुत हेल्प करी। थैंक यू सर। इससे 2 बातें सामने आती है जो मैं दोहराना चाहूंगा। एक तो बच्चों से बचपन से एक दोस्ती का रिश्ता, बाप बेटे के साथ दोस्ती का रिश्ता बना रहे, कन्वर्सेशन, बातचीत हमेशा होनी चाहिए इवन बिफोर ही कम्स टू बिजनेस, ताकि वो एक दीवार नहीं रहती है दोनों के बीच में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रीट योर सन्स और फादर, whoever you are and what perspective, equally as an individual, and assuming that he also has his own perspective and knows equally as much as you. सर, इसका एक लीडिंग सवाल था मेरा। आपने बताया कि अपने सबको, फादर सन को बराबर समझना चाहिए। अब ये स्थिति में जहां आपके बेटों में आपको वो कैपेबिलिटी नहीं दिखाई देती है, आपको लगता है, आपकी जो सोच है एक फादर की सोच से, मैं आपकी मतलब पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, आप एज अ एल्डर जनरेशन के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे, कि फादर को लगता है कि बेटे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो बार बार रॉन्ग सोच रहा है, रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एवरीवन हैज इक्वल कैपेबिलिटीज। तो उस विषय में फिर फादर को कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशन? धन्यवाद, अच्छा प्रश्न है आपका। पर मैं अपने आप बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं, मैंने जब से बच्चों को बड़ा होते देखा कि उनकी स्टार्टअप मेरे से बहुत बेटर है, उनकी सोच मेरे से ज्यादा बेटर है, उन्होंने जमाना नया बहुत देखा है जो मैंने नहीं देखा था, तो मुझे कभी उनके ऊपर शक नहीं हुआ कि ये काम नहीं कर सकते। हमेशा ये लगा कि ये मेरे से बेटर काम कर सकते हैं, जो कंप्यूटर मुझे नहीं आता, जो नई चीजें मैंने नहीं देखी, नहीं सुनी, वो मेरे से बढ़िया कर सकते हैं। मैंने कभी ये दूरी अपने से मानी नहीं, इस कारण से हमारे रिश्ते निभाने में प्रॉब्लम नहीं आई। मैं नहीं मानता था कि मैं होशियार हूं, मैं ये हमेशा मानता जहां से मैंने छोड़ा है मेरे बच्चों ने वहां से चालू किया है, तो मेरे से वो 1+ तो है ही। यदि 1+ नहीं है तो ये कहीं मेरी कमी है, जहां से मैंने छोड़ा है वहां चालू किया है, तो मेरे से अच्छे होंगे ही होंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। ये सोच रखेंगे आप तो आप बच्चों को अपने से बेहतर ही पाएंगे और आपको आपके काम में वो हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू। एक और सवाल, टिपिकली आपने जो बात की, डेमोक्रेसी की बात की कि भाई सब बराबर है, एक साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ये भी मैनेजमेंट की सोच है कि अनलेस यू हैव अ सिंगल लीडर टू फाइनली डिसाइड,
someone who leads, और ये इवन देश में भी बात होती है कि सिंगापुर चीन ज्यादा आगे बढ़ पाए बिजनेस पर्सपेक्टिव से। मैं बाकी बातों पर नहीं जाऊंगा कल्चर एक्सपेक्ट, क्योंकि वह एक सिंगल मैन, आपने सही लीडर चुना और फिर उसने जो डिसीजन लिया, पीपल फॉलोड आफ्टर डिस्कशन। फाइनली समवन हैज टू टेक द कॉल, क्योंकि मतभेद होने स्वाभाविक है, 2 जन में भी होते हैं, 3 जन में भी होते हैं। तो व्हाट इज आपका क्या टेक है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी इन फैमिली बिजनेस? थोड़ा ये प्रश्न ही बड़ा टेढ़ा है। लीडरशिप तो हमेशा एक ही रहेगी। अब लीडर का ये गुण होना चाहिए कि सबको साथ लेके कैसे चले, सबको अपने काम की सेटिस्फेक्शन हो, हर चीजों से उनसे ले, उनको श्रेय भी दे, उनके ऊपर डोमिनेट नहीं करे, उनकी इच्छाओं को आगे बढ़ाए, उनकी सोच को दबाए नहीं, उस सोच को आगे बढ़ाए, सोचना सिखाए उनको, और नई जो उनकी सोच है उसको अप्रिशिएट करें, तो दूरी धीरे धीरे कम हो जाती है। जितना हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हमें भय नहीं होना चाहिए कि हम अप्रिशिएट करेंगे तो हमारा राज छिन जाएगा। जितना हम अप्रिशिएट करेंगे बच्चों को, उतना हमारा राज, हमारी लीडरशिप बढ़ेगी। हमें अपने पे शक नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। बच्चे आ गए तो हमारा क्या होगा, बच्चे आ गया तो हम बड़े आराम से रहेंगे। पहले अकेले थे, अब 4 आदमी काम करने वाले हो गए। उनकी भावनाओं का भी आदर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को बंद दायरे में मत पाइए कि मैंने किया वही ठीक था, मेरे बाद में दुनिया बहुत बढ़ गई, मेरे से आगे वो जानते हैं, उस सोच को आगे बढ़ाएंगे तो आप भी लीडर बने रहेंगे और उनको भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मेरा मन है। एक जन का सवाल है बॉम्बे से, काफी बड़ा बिजनेस है उनका, मैं नाम नहीं लूंगा। वो बोले मेरे 2 बेटे हैं, अब मैं 70 के आसपास आ गया हूं, तो अभी तक मैं लीड करके चल रहा था, अब मुझे लीडरशिप देनी है। तो अब मेरे में 2 ऑप्शन है। एक तो मैं बिजनेस को स्प्लिट करके दोनों को अपने अपने में लीडर बनाऊं, जिससे कंपनी का, ग्रुप का जो टोटल पावर है वो कम भी होगा, या मैं दोनों बेटों में से जिसको मैं ज्यादा काबिल सोचूं उसको मैं एमडी के रूप में बनाऊं और दूसरे बेटे को जेएमडी रहने दूं। तो आज तक तो मैं एक रेफरी के हिसाब से, एक लीडर के हिसाब से साथ में था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो व्हाट शुड आई डू इन सच अ सिचुएशन? Should I split the business or should I make one person who I think is more capable as the leader? इसका प्रश्न का जवाब बिल्कुल स्टीरियोटाइप नहीं है। व्यापार में एक बड़ी बात होती है, 2 और 2 4 नहीं होते, या तो 2 और 2 10 होते हैं, या 2 और 2 0 होते हैं, या 2 और 2 4 नहीं होते। उन बच्चों की आपस की सिंक्रोनाइजेशन ठीक है तो आपको साथ काम रखना चाहिए। यदि सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं है तो अलग करना भी बुरी बात नहीं। यदि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो साथ मिलकर के काम का डिसीजन नहीं होकर के हम शायद और पीछे चले जाएंगे। यदि उनका आपस में डायलॉग ठीक है, आपस में समन्वय ठीक है, तो साथ रहना चाहिए। थोड़ी बहुत भी तकलीफ है तो अलग करना कोई बुराई नहीं है। अलग करने के बाद भी उनको प्रेम से रह सकें, साथ रह के प्रेम ठीक रहेगा या अलग रह के प्रेम ठीक रहेगा, ये सोच जरूरी है। ये सोच हमारी जरूरी है। प्राइम चीज है कि हमारी आपस में हार्मोनी अलग रह के है या हार्मोनी साथ रह के है। ना बिंदा व्यापार अलग करना गलत है, ना व्यापार साथ रखना गलत है। बच्चों की आपस की नेचर के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। बड़े बड़े परिवार भी हमेशा साथ नहीं रहे, साथ रहे भी अलग भी हुए, दोनों चीजें ही गलत नहीं है। हार्मोनी, परिवार की प्रसन्नता, आपस का प्यार जिससे बढ़े वो काम करना चाहिए। साथ रहना भी बढ़िया है, अलग होना भी बढ़िया है, प्यार रहे ये जरूरी। एकदम ये जो अपने कहते हैं ना कि जैन धर्म में अनेकांतवाद, कोई भी एक जवाब जरूरी नहीं कि सही हो, दोनों जवाब ही अपने अपने स्थिति के हिसाब से सही है। तो बहुत ही तो ये मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लें। मैं बीच में चाहता हूँ बोलना, जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं मैं भी उसी स्थिति से गुजर रहा हूँ। मेरे भी 3 बेटे हैं, मैं भी सोचता हूँ आगे क्या करूं। मैं भी सोच रहा हूँ आज के दिन हमारी बैलेंस शीट एक है, हमारी किटी एक है, अभी हम सुख से चल रहे हैं, दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं सोच तो जरूर रहा हूँ आज भी कि मुझे आगे के लिए क्या रहे, व्यापार कितना रहे, मैं उसके लिए कंसर्न नहीं हूं। इन भाइयों का प्रेम कैसे रहे, आपस में भाईचारा कैसे रहेगा, ये यदि रहेगा, वो चाहे साथ रह के रहे और चाहे अलग होके रहे, भाईचारा हमारा बढ़ना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हम कंसर्न रहे, एक से दुखी हों,
एक के प्रति ईर्ष्या या कंपटीशन नहीं करें। ये साथ रह के हो चाहे अलग रह के हो। मैं भी आज सोच रहा हूँ, वकील मैं भाग्यवान हूं, अभी हमारी बैलेंस शीट अलग अलग नहीं है, पर एक बढ़िया बात है, सबको अपने अपने काम करने की छूट है। सबके पास अपना काम है, सबके पास अपने काम की सेटिस्फेक्शन है। वो सेटिस्फेक्शन रहेगी तो साथ रह के भी हम काम कर सकते हैं। बहुत सही बात है कि हार्मनी इज मच इम्पोर्टेंट, लव इन द फैमिली इज मच इम्पोर्टेंट दैन बिजनेस। एक और सवाल औरंगाबाद से है, बोला मेरे एक बेटा है और एक मेरे भाई का बेटा है जो हमारे साथ बिजनेस में है। अब मेरे भाई का बेटा डेफिनेटली मेरे को लगता है मेरे बेटे से कई गुना ज्यादा केपेबल है, लेकिन अब मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं चेयरमैन हूं कंपनी का, मैं एमडी किसको बनाऊं, अपने भाई अपने बेटे को जो मेरा खुद का एक प्रेम है, या बिजनेस की कैपेबिलिटी देखकर भाई के बेटे को बनाऊं, या मैं उनको भाई के बेटे को कुछ देकर अलग कर दूं, या हाउ डू आई हैंडल दिस सिचुएशन? या स्किल डिफरेंस परसीवेबल है? अच्छा प्रश्न है। मैं जिस प्रश्नकर्ता को धन्यवाद देता हूं कि उनमें ये हिम्मत है कि अपने भाई के बेटे को अपने बेटे से बेहतर मानते हैं। नहीं, प्राय तकलीफ हम यही पाते हैं, अपना बेटा जो ठीक नहीं भी होता, अपना बेटा ही ठीक लगता है, भाई का बेटा ठीक लगता नहीं है। ये प्योर सत्यवादिता से बोलने के लिए बड़ी बात है कि आप प्योर जैन है, और मेरे हिसाब से तो जो कैपेबल है उनको साथ में आप कैटलिस्ट बन के रहिए कि उन दोनों को साथ जोड़ के कैसे रखें। ये थोपा हुआ साझा नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल हो कि वो उसको लीडर माने, आपके भाई के बेटे को आपका बेटा भी लीडर माने। ये यदि अपने काल में आप करवा सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा, बाद में होना मुश्किल हो जाएगा। आप ये तैयारी कीजिए कि अपने भाई के बेटे को की लीडरशिप आपका बेटा भी माने तो परिवार साथ चलेगा। Very, very, very true. I think am I cover? Yeah. आप आवाज आ रही है आपको या कट गई? आ रही है। जी चलिए। एक और सवाल ये युवा पीढ़ी से है, चेन्नई से। बोला मैं बिजनेस में 10 साल से हूं और ये बिजनेस जॉइंट बिजनेस है, मेरे फादर और 2 अंकल्स इस बिजनेस में हैं, और पहले मुझे कहा गया कि आप अनुभव लो, अभी आप समझो, फिर आप अपनी नई चीज करने का सोचना। बोला मुझे 10 साल हो गए बिजनेस में और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं कि मैं कुछ भी नया अलग हटके करना चाहता हूं। मुझे दिख रहा है बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मैं इन 3 ब्रदर्स, मतलब हमारे जो सीनियर जनरेशन है, इनको कन्विंस नहीं कर पाता। अगर एक को कर भी देता हूं तो बाकी 2 नहीं होते हैं। तो मैं क्या करूं, इस बिजनेस में रहूं या छोड़ के अपनी राह कुछ और देखूं, कुछ फादर से बोल के कुछ शेयर लेके अपना ही कुछ करूं? बोला क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं और मेरी एज निकलती जा रही। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये सबके साथ ही है। मैं एक बात मानता हूं हमेशा कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसका कारण बड़ा है कि हमें अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को भी अपने से कन्विंस करना पड़ता है। हम कैसे उनको कन्विंस करें? हमारी सारे ज्ञान का, पढ़ाई का आधार यही है कि अपने सीनियर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने बैंकर्स को अपने बात से प्रभावित कैसे कर सकें, उनको अपनी बात मनवानी कैसे सीख सकें। आप आग्रह नहीं करके कि वो बात नहीं मानते, जैसे हम अपना गियर बदलते हैं गाड़ी के अंदर, वैसे भी अपने समझाने का तरीका कुछ बदलें। अपनी बात को इंप्रेस कैसे कर सकें, अपनी बात का आग्रह नहीं करके वो आपकी बात को अप्रिशिएट कैसे कर सकें, ये थोड़ा सोचेंगे तो उसे समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले ये माने कि हमें समझाना है उनको। हम यदि पहले ही मानेंगे वो बात हमारी मानते नहीं है, जैसे मैं आपको कहूं कि हम अपने ये परिवार में तो मानते, जब कस्टमर हमारे पास आता है, भिन्न भिन्न तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं, हर तरह के आते हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, बदतमीज, तमीज वाले, सभी तरह के आते हैं। हम हर तरह के कस्टमर को, सप्लायर को, बैंकर को हैंडल करते हैं। चाहे बैंक मैनेजर बदल भी जाए उसको भी हम हैंडल करते हैं, पर जब अपने परिवार की बात आती है तो हम थोड़ा सा फंसी हो जाते हैं। क्या करें, मानते ही नहीं है। वो कस्टमर भी नहीं मानता, उसको भी मनाने की चेष्टा हम करते हैं, अपना गियर बदलते हैं, अपनी बात बदलते हैं। कैसे ये बात समझेगा? अपने परिवार से भी यदि आप ट्राई करेंगे उसको मैं कैसे विन ओवर करूं, अपनी बात की जिद पे ना अड़े रहें। कैसे में जैसे कस्टमर समझाते हैं वैसे अपने परिवार को समझाना चालू करेंगे, तो दूरियां आपकी दूर होकर के आप कन्विंस कर सकें
तो साथ ही कन्विंस नहीं कर सके तो अलग काम करने में भी कोई हर्ज नहीं, अलग काम करने में भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये बुरा नहीं मान के इसको आप बुरा नहीं माने, करिए, सब लोग करते हैं, बात नहीं, पर कन्विंस करने की चेष्टा पूरी कीजिए पहले आप। सुपर्ब, बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी पॉइंट कहा कि आप अपने फादर या अंकल को उनको एक अधिकार मत समझिए कि जो आप बोलेंगे वो मानेंगे, क्योंकि आप उनके परिवार के हो। जैसे आपका कस्टमर आपके एनवायरनमेंट में बाकी लोग नहीं मानते हैं और आपको कन्विंस करना पड़ता है या मूव ऑन करना पड़ता है, वैसे ही आप अपनी जो आइडिया है फुल पूरे पॉइंट्स के साथ उनको कम्युनिकेट करें with patience and show them how it is better. So please don't take it as a birthright कि मैं इस परिवार में जन्म लिया हूं, अब मैं इतने साल का हो गया, मेरे बाप को, मेरे चाचा जी को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। बहुत ही आपने जबरदस्त, मतलब फैंटास्टिक पॉइंट आई वुड से। अब एक सवाल एक सज्जन का है, वो उनका सवाल बड़ा सिंपल सा है कि मेरे एक ही बेटा है, तो मैं इन उलझनों में नहीं फंसा हुआ हूं, लेकिन मेरा बेटा बिजनेस में नहीं आना चाहता है क्योंकि उनको लगता है मैं बाप के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, इनकी सोच अलग है। तो मैं कैसे नेक्स्ट जनरेशन को, मैंने एक बिजनेस बढ़ाया है, मैं वेट कर रहा हूं मेरा बेटा बिजनेस ज्वाइन करे, मैं उसका पूरा समर्थन करने को तैयार हूं, मैं इसको कैसे कन्विंस करूं कि ही शुड कम टू द बिजनेस? ये भी जैसा मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, वो भी पहला प्रश्न का वैसा ही उत्तर है। आप अपने बच्चे के आइडियल क्यों नहीं बन सके? आप बच्चों में, आपके बच्चे में आप में दूरी क्यों है समझ की? आपका बच्चा आपसे अलग क्यों मानता है? तब बच्चे को आप व्यापार के प्रति 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में भी आप उसको इंप्रेस कर पाते हैं, यदि अपने प्रति आकर्षण पैदा कर पाते, तो ये समस्या आज तक नहीं आती। मेरे बच्चे भी बहुत पढ़े लिखे, पर उनका मेरे प्रति आकर्षण था, मेरे काम के प्रति आकर्षण मैंने बचपन से पैदा किया, मुझे करना नहीं पड़ा। कब हो गया करना पड़ना, उसको मालूम पड़ना ही नहीं चाहिए कि कब मैंने उसका इंटरेस्ट पैदा कर दिया। हमने बचपन से उनका इंटरेस्ट पैदा किया, तो आज मेरे बिजनेस के अंदर है। ये जब करना पड़ रहा है कुछ, ये मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए। प्यार करना नहीं होता, प्यार हो जाता है। इंप्रेस करना नहीं होता। कब आपसे आपका बेटा इंप्रेस हो जाए, ये जो करना पड़ रहा है, यही कहीं हमारी चूक रही है। सारी उम्र हम साथ में रहे, अपने बेचे को अपनी तरह से कैसे हमारे दोनों की राग एक हो जाती, हम कुछ उससे सीखते, कुछ वो हमसे सीखता, तो हमारी दूरियां हमारी कम हो जाती और ये करने की नौबत आपको आज नहीं आती। अब भी बिगड़ा नहीं है, आप थोपिए मत। कब दोनों एक हो जाएं, कब दोनों की सोच एक हो जाए, कुछ आप बदलिए, कुछ उसको अप्रिशिएट कीजिए, कुछ वो भी कैसे बदल दे उसको मालूम पड़ना ही नहीं चाहिए। कब उसको बदल रहे हैं आप, ये उसको मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए। यही हमारा आर्ट है, बड़े हैं इसके लिए हमारा आर्ट यही है। आप सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा। कब आपकी अनकही बातें आपकी समझ जाए वो, कि आप दोनों दो नहीं रह करके एक हो जाएं, कुछ आप उनसे सीखो, कुछ वो आपसे सीखें, दोनों हमारी टीम एक कब हो जाए, ये बुराइयां खत्म हो जानी चाहिए। हम सिखाएं नहीं, हम अपने आप का साथ ढूंढे। साथ ढूंढने में कब वो सीख जाएंगे, कब आप सीख जाएंगे, तो मालूम पड़ता ही नहीं। सिखाना नहीं होता। सुपर्ब सर, मतलब आपको ये मैं अपना थोड़ा एग्जांपल लूंगा। मेरा भी एक ही लड़का है, अभी जस्ट 19 साल का हुआ है, 12 पास किया है, और मैं उसको क्लास 7 से अपने साथ फॉरेन ट्रिप्स में ले जाता हूँ। तो फॉरेन के नाम से आदमी, बच्चा एक्साइटेड होता है, तुरंत हाँ भर लेता है। उसको ये, उसके माध्यम से वो धीरे धीरे बिजनेस समझता है। कभी फैक्ट्री ले जाइए, दिवाली पूजन पर सिर्फ घर पर नहीं, उसको फैक्ट्री में, ऑफिस में ले जाइए, तो धीरे धीरे उसका एक मन, उसको एक बिजनेस पहले से ही समझ में आने लगता है, उसके एक व्यू पर्सपेक्टिव बनने लगता है। और हमारी कंपनी का जब सिल्वर जुबली था स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी में 25 साल, तो मेरे बेटे जो सिर्फ क्लास 10 में था, मैंने उसको, आई मेड हिम स्पीक देयर अबाउट हिज विजन फॉर द टीटी ग्रुप. So he didn't know much about business, but still he created his own vision and he spoke for 5 minutes about that. So yes, मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं, exactly that's what I have also been personally following. So it's nice to know कि मैं जो सोच रहा हूँ that is being validated.
एक सवाल हमारे यहाँ चैट बॉक्स पे आया है, वो कह रहे हैं कि अगर बेटे कंटिन्यूअसली या बेटियां जो भी आपके बिजनेस में, अगर वो कंटिन्यूअसली गलती पर गलती करे जा रहे हैं, आपको दिख रहा है वो गलती कर रहे हैं, आप उनको समझाना चाहते हैं, जो एक बुक में लिखा हुआ है, वी नीड टू टेक द नेक्स्ट जनरेशन विद अस, उनको हम साथ में समझाते हुए चले, पर हम कब तक उनको ये गलतियां करने दें या उनको एडवाइस करें, या शुड वी बी स्ट्रांग विद देम? हाउ डू वी मेक अ बैलेंस कि ताकि वो बिजनेस में चलते भी रहे और उनको, और इनकी गलतियां को हम पकड़ के उनको सही भी करा सके? धन्यवाद। थोड़ा सा एक भेद आता है यहीं पर ही, जब आप गलतियां पकड़ते हैं, जब गलती पकड़ते हैं तो वो उसका प्रतिरोध करता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए कब आपके पकड़ के उसको ठीक कर दिया। ये मालूम पड़ेगा उसको तो हर आदमी प्रतिरोध करेगा। ये बचपन से लेके आज तक, ये जो अभी तक भी आप उनकी गलतियां मानते हैं और वो भी मानता है कि मेरे और बाप में डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप ठीक करोगे तो ठीक नहीं होगा। कब ठीक कर दिया उसको मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए, ये मालूम पड़ रहा है हमको और आपको, तब वो प्रतिरोध होगा। हम जब दो हैं, बाप बेटा नहीं है, बाप बेटा दो नहीं होते, कुछ बेटा ठीक करता है, कुछ बाप ठीक करता है, बेटा भी बाप को बहुत ठीक करता है। मुझे आज भी एक बार याद है, जब मेरा बेटा समझ लो कि 6-7 साल का ही होगा, तो मुझे कभी वो दरियाई घोड़ा देखा सर्कस का एक, हमें नहीं मालूम इसका इंग्लिश का नाम क्या होता है, तो मेरे बेटे ने बोला हिप्पो 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 हिप्पो, हमें हिप्पो वर्ड ही नहीं आता था। तब मैंने पहला वर्ड सीखा मेरे बेटे से, हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़े को बोलते हैं। बेटे से भी सीखना उस 5 साल की उम्र से चालू करेंगे, और बेटे को भी लगा कि मैंने बाप को सिखाया हिप्पोपोटेमस, बेटे को भी लगा कि मैंने बाप को सिखाया हिप्पोपोटेमस, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है, सब मैं बड़ा समझदार हूं। तो ये दूरियां दूर हो जाती हैं, टीचर स्टूडेंट नहीं रह करके, बाप बेटे नहीं रह करके, कब एक दूसरे के प्रति आदर करना सीख लेते हैं, आदर अप्रिशिएट करना सीख लेते हैं, तो हमारी ये दूरियां धीरे धीरे कम हो जाती है। ट्रेनिंग बचपन से चालू होनी चाहिए। एक बार दूरियां बन गई, जब मन में ये आ गया कि वो अलग है, मैं अलग हूं, गलतियां करता है, वो गलतियां नहीं करता, बेसिक है कि वो एक अलग इंसान, तरीका उसका अलग है। गलत, ये बड़ा पर्सपेक्टिव है, आपका तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है, गलत है या ठीक है। मेरे फादर का जो मेरे फादर ने काम किया मैंने नहीं किया, तो क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत रहा? मेरे बेटे ने जो काम किया मैंने नहीं किया, तो क्या मैं मानता था कि वो गलत है? यस, हिज वे इज डिफरेंट देन मी, और वही मजा है इसका कि वो मेरे से अलग है, जो मैं नहीं कर सका वो करे, ये गलती नहीं है। मेरे बेटे मेरी तरह काम नहीं करते, और मुझे यही चाहता हूं कि जो मैं नहीं कर सका वो करें। मैं ये मानता हूं कि वो मैं नहीं हूं जो मेरे बेटे हैं, मेरे में कमी है, ये मानती है तो हमारा डिफरेंस अपने आप दूर हो जाता है। ये बचपन से हमें ट्राई करनी पड़ती है, हमारी ये दूरी नहीं रहे, हम उसको गलतियां नहीं माने, कब ठीक करते हैं उसको। यदि आप ठीक करेंगे, उसको मालूम पड़ गया ठीक कर रहे हैं, तो ठीक नहीं होगा। सुपर मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मालूम पड़ेगा ठीक कर रहे हैं तो रिएक्ट करेगा, नहीं ठीक होगा। मुझे लग रहा है कि it's not only about family business, we are learning so much about behavioral science, कि how to understand people, which I think so is the most important thing. जिंदगी में कोई भी पहलू में अगर सक्सेसफुल होना है, understanding people is the most important thing. और कितनी सुंदर बात बोली आप, गलती देखे उसको सुधारे, लेकिन उसको पॉइंट आउट ना करे कि तुमने गलती की है। आई थिंक सो ये हमारे हर रिश्ते में, सिर्फ बिजनेस नहीं, हर रिश्ते में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब हम बच्चों को छोटे से बड़ा भी करते हैं, हमारा वैवाहिक रिलेशन हो, एनी रिलेशन, फैंटास्टिक सर, मजा आ गया सर। मैम एक और सवाल जो वैसे काफी कॉमन है, कि एक भाई बड़ा डायनेमिक है, किसी का रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती है। अब कौन सही है गलत है, ये तो 2 साल 5 साल बाद में पता चलता है। अब एक ही बोर्ड रूम में जब आप बैठे हैं, एंड यू हैव वन चाइल्ड हु इज वेरी डायनेमिक, जो अच्छी बात है, यू हैव वन चाइल्ड हु इज मोर लॉजिकल, मोर कंजर्वेटिव, तो ये कंफ्लिक्ट, क्योंकि आपको कॉमन बिजनेस को आगे बढ़ाना, हाउ डू यू रिजॉल्व दिस कंफ्लिक्ट एमिकेबली? इसको मैं कंफ्लिक्ट नहीं मानता, बून मानता हूं। दो एक जैसे आदमियों की कभी बनती नहीं है।
एक डायनेमिक है, एक डायनेमिक नहीं है, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों डायनेमिक होंगे तो साथ रहेंगे नहीं। आप इसको बुराई मान रहे हैं, मैं इसको अच्छाई मानता हूं, सप्लीमेंटिंग है। दोनों सप्लीमेंटिंग है, कंप्लीमेंटिंग है, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं तभी साथ चाहिए। दाल और चावल, चावल चावल की दोस्ती तो नहीं बनती ना, दाल और चावल की दोस्ती बनती है। एक दाल है, एक चावल है, एक दाल है तो एक चावल है, दोनों ही चावल चावल है तो खाना नहीं बनेगा ना। एक डायनेमिक है, एक फॉलोअर है, तो कॉम्बिनेशन चलने में बड़ा आराम रहेगा। इसको आप व्यवधान मत मानिए, इसको बुराई मत मानिए। दोनों एक से, पूरे फुटबॉल टीम में सारे गोलकीपर नहीं होते, सारे सेंटर फॉरवर्ड नहीं होते, हर एक की अपनी अपनी जगह है, अलग अलग जगह है, एक से है ही नहीं। कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, दो अलग अलग हैं तभी टीम बनती। दो एक से आदमियों की टीम नहीं बनती। साथ पति पत्नी का होता है, दोनों पतियों का नहीं होता। पति पत्नियों में कितना डिफरेंस है, बिल्कुल मतलब भगवान ने बना के दोनों होते हैं, दोनों में हैं। यदि आपके दोनों बेटे अलग अलग नेचर की है तो ये बड़ा अच्छी बात है, दोनों मिलके पूरे हो जाएंगे। दोनों लीडर होंगे तो काम कर ही नहीं पाएंगे। एक लीडर है, एक फॉलोवर है, अच्छी बात, दोनों साथ रहेंगे। इसको आप उल्टा अप्रिशिएट कीजिए, इसको बुरा मत मानिए। ये मेरी फीलिंग है। मेरे तीनों बेटे बिल्कुल एक से नहीं है, बिल्कुल एक से नहीं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों की नेचर अलग अलग है, पर तीनों नेचर अलग अलग होने के बाद में अंदर बंधन है कि तीनों एक दूसरे की तकलीफों को तकलीफ मानते हैं, अच्छी बातों को अच्छी बात मानते हैं। दे आर सप्लीमेंटिंग। यही माने, तीनों एक से। वी डोंट वांट रोबोट नहीं चाहिए हमको, जिंदा आदमी चाहिए, जिनमें अलगाव होना जरूरी है, अलगाव होना जरूरी है, रोबोट नहीं चाहिए हमको। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्युनिकेटेड। जो एक जन को प्रॉब्लम लग रही है, जिसने सवाल पूछा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितने सुंदर तरीके से इसको एक स्ट्रेंथ बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन अगर बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, टू नेगेटिव्स नेवर अट्रैक्ट, टू पॉजिटिव्स नेवर अट्रैक्ट। इवन साइंटिफिकली भी यही है। अब मैं एक सवाल जो हमारे चैट बॉक्स में है, वैसे तो बहुत सारे सवाल है बट वी कैन नॉट टेक, और वैसे आपने पार्टली काफी सवालों का जवाब इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे दिया, बट मैं एक ये सवाल क्योंकि आया है। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। वी आर 3 ब्रदर्स वर्किंग टुगेदर इन अ फैमिली। एक ही परिवार में 3 भाई है जो हमारे फादर ने शुरू किया था, और सभी अपने बिजनेस में पूरी तरह से डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है। बट प्रॉब्लम क्या है, हर एक आदमी अपने आप को दूसरे से ज्यादा होशियार समझता है, ज्यादा सुपीरियर समझता है। तो हम 3 भाइयों में कोऑर्डिनेशन करने में बड़ी तकलीफ होती है, एंड ये हमारे बिजनेस को हैम्पर कर रहा है। तो ऐसी सूरत में आदमी को क्या करना चाहिए? ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। मैं इससे एक बात का जवाब, मुझे आचार्य श्री को, मैं जब हेमंत की शादी हुई थी तो उसको आचार्य श्री दर्शन करने उसको उसकी पत्नी को लेके गया, तो आचार्य श्री ने बढ़िया कहानी बताई मुझे कि एक बड़ा परिवार था, 100 आदमी साथ में रहते थे, साथ में उनके पत्रकार, और बड़े सफल थे, लीडरशिप बढ़िया चल रही थी उनकी। एक पत्रकार आया उनके पास में, तो उनके पीछे क्या राज है, आप तीनों साथ इतने इतने बड़े परिवार को आप साथ रख रखे हैं, क्या कारण है, क्या क्या सूत्र है आपका? उस आदमी ने एक वर्ड लिखा, सहनशीलता 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 सहनशीलता। पत्रकार ने पूछा, आप बहुत सहते हैं उनको? बोले, ये ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ ये है कि वो 100 आदमी मुझे सहते हैं, वो 100 आदमी मुझे सहते हैं। हम हमेशा ये मानते हैं हम उनको सहते हैं, हम ये कभी नहीं मानते कि वो भी हमें सहते हैं। जिस दिन हम ये मान लें कि वो भी हमें सहते हैं, वो हमें सहते हैं, तो हमारा आपस का रहना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, फिर मैंने कहा कि हर आदमी की इच्छाएं, खास के भाइयों में कंपटीशन की भावनाएं हुए बिना रहती नहीं। उन कंपटीशनों की भावना को कंपटीशन नहीं मान के एक दूसरे का पूरक कैसे माने। और दूसरी बात, हर व्यापार में कुछ स्पेस होना चाहिए, हर आदमी को करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मेरे 3 बेटे भी तीनों एक ही काम में रह जाते, उनको वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं रहती। मेरे बच्चों ने आने के बाद भी मैंने काम को 3 भागों में, 3 दिशाओं में बांटा, तो हर एक आदमी सेटिस्फैक्शन भी है, और लीडरशिप मेरी मजबूत है,
मेरे को तकलीफ भी नहीं है। हर आदमी को कुछ करने का एक शौक है, मैंने क्या किया, मैं खाली फॉलोवर ही नहीं हूं। हर आदमी को काम करने की अपॉर्चुनिटी है और कंट्रोल भी है। ये कुछ कर पाएंगे तो बढ़िया रहेगा, और दोनों वो भी हमें सहते हैं, ये फीलिंग आ जाएगी तो हम पॉजिटिव भावना से बड़े अच्छे हो जाएंगे। ब्रिलियंट सर, बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि हम हमेशा अपने आप को विक्टिम समझते हैं और हम भूल जाते हैं कि वी आर ऑल्सो समवन एल्स इज अ विक्टिम बिकॉज ऑफ अस। और जिसने ये सवाल पूछा उनको मैं ये कहना चाहूंगा, यू शुड सिट विद योर फादर and try to work out कि अपनी अपनी एरिया को आप अलग अलग करें. If you're superior, work in your own space and area and show that you're superior by results rather than just keeping superiority in the mind. I'm sure if you sit down as friends, you'll definitely find a solution and work will show who's better or who's worse. But फिर भी आप अपने आप को, you are brothers and never think that you are competitors. एक अच्छा करेगा, कोई कभी अच्छा करेगा, समय का चक्कर सबका चलता है. सर अब मैं आपसे एक जनरल, ये एक सबका एक माइंड है, फैमिली बिजनेस का आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या है? हम फैमिली बिजनेस की बात तो कर रहे हैं, परिवार वालों की बात कर रहे हैं, बट आपके हिसाब से फैमिली बिजनेस का डेफिनेशन क्या? व्हाट डू वी कॉल अ फैमिली बिजनेस? मैं कल से, जब से आपका मुझे मालूम पड़ा, मैं भी सोच रहा हूँ फैमिली बिजनेस क्या होता है। क्या रिलायंस का, मुकेश अंबानी का फैमिली बिजनेस है या अपना बिजनेस है, या अनिल अंबानी भी उसी फैमिली से बिलोंग करता था, उसका फैमिली बिजनेस है या नहीं है? फैमिली बिजनेस मैं उसको मानता हूं जहां पर किसी अपने परिवार ने काम चालू किया हो, उस काम को हम साथ में निरंतरता से उसी काम में आगे बढ़े हुए हैं और हमने काम को बढ़ाया है, तो वो फैमिली बिजनेस है। काम चालू हमने किया है तो फैमिली बिजनेस नहीं। उसके बाद फैमिली बिजनेस कब बनेगा? जब हमारे बेटे उस साथ जुड़ेंगे। जैसे मेरे बेटे मेरे साथ जुड़े तब मेरा फैमिली बिजनेस बना, उससे पहले तो मेरा अकेले का बिजनेस था। बात नहीं, फैमिली वहां चालू होती है जहां से आगे पहले चले हुए काम को, चाहे भाई का है, चाहे बाप का है, चाहे दादा का है, उस बात को कंटिन्यूटी करके हम साथ रह पाते हैं, तो हमारा फैमिली बिजनेस है। इससे नौकरी कभी फैमिली नौकरी नहीं होती, बिजनेस ही हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर साथ मिलेगा। नौकरी तो अकेले करनी पड़ती। नौकरी वालों को ये समस्या फैमिली नौकरी नहीं। व्यापार में ही हम अपने पारिवारिक काम को आगे बढ़ाते हैं या उसमें कुछ ऐड करते हैं तो भी फैमिली बिजनेस है, उससे अलग हो जाते हैं तो फैमिली बिजनेस नहीं। उस काम को, जैसे आपने अपने पैतृक काम को, रिखपतन जी जैन के काम को आगे बढ़ाया आपने, तो आपका फैमिली बिजनेस। रिखपतन जी जैन के पिताजी ने, रिखपतन जैन का फैमिली बिजनेस शायद नहीं था, उन्होंने काम नया चालू किया। To my knowledge, again I may be wrong, you see also. अब आप भी एक फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे? ये फैमिली बिजनेस, मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरे काम को आगे बढ़ा भी रहे हैं और उसको चला भी रहे हैं, तो फैमिली बिजनेस है। जिस दिन अलग हो जाएगा, आज अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से अलग हो गया तो वहां से फैमिली दो भाग में बंट गई। फिर भी मुकेश अंबानी के आगे बच्चे साथ में, उसका फैमिली बिजनेस है। अनिल अंबानी के बच्चे साथ में, तो उसका फैमिली बिजनेस है। ये मेरी सोच। अब मैं एक थोड़ा सा अलग हट के आपको सवाल पूछ रहा हूं, जो किसी सज्जन ने पूछा है कि अभी हम जनरली बेटों की बात करते हैं और सन्स की बात करते हैं। नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, जहां daughters are equally capable and are joining our businesses or doing something, as a father, दो ठीक है, आपको पता है आपकी डॉटर की मैरिज होगी, how do you look at your daughter and how do you create a career path for her? Do you give her something independent or do you bring her into your family business when you also have a son? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है और इसके अंदर ज्यादा हमारी भावनाएं बहुत जुड़ी होती हैं। ये हम मानते हैं कि बेटा बेटी बराबर है, पर ये कहने की बात तो है, बेटा बेटी बराबर तो नहीं है। बेटी तो आपके घर में नहीं रहेगी, आपके घर में तो बहू ही आएगी। आप बेटा तो आपके उसके बहू के घर में नहीं भेजोगे, बहू के घर में नहीं भेजेंगे। हम दोनों एक माँ बाप के संतान होने के बाद के अंदर भी फैक्ट ये है कि हमारी बेटी एक दूसरे परिवार के घर में जाएगी, हमारे परिवार में नहीं रहेगी। हमारा जवाई, हमारा कंवर साहब दूसरे परिवार से आएंगे, उसका क्या बिजनेस होगा? यदि हम फिर पीहर की इंटरफेरेंस बहुत रखेंगे,
उसके अपने काम में इंटरफेरेंस रखेंगे तो शायद दोनों घरों की लाइफ खराब हो। बेटी जो हमारी हिंदू रीति या हमारी जैन रीति है पारिवारिक, बेटी हमारी घर की पांतीवाल नहीं होती। हम उसको चाहे पूरा कुछ दें, पूरी उसको समझ दें, पूरी अपने घर को मैनेज करना सिखाएं, उसके दुख काल में साथ रहें, पर वो धिरानी अपने मालकिन तो अपने घर की होगी, आपके घर की नहीं होगी। जहां बेटियां अपने घर में भी यहाँ अपना पांव रखेंगी और उस घर में भी हिस्सा चाहिए और इस घर में भी हिस्सा चाहिए, दो घर में हिस्सा तो नहीं मिलेगा। मेरे तो इत्तेफाक से मेरी बेटी नहीं है, मेरे अब एक पोती है, तो मैं बहुत होशियार होने के बाद भी सोचता हूं कि वो मेरे घर की मालकिन तो नहीं रहेगी, वो मेरी, मैं जो उसको दूंगा वो ले जाएगी। मेरे घर में पांतीवाल रहनी, फिर समस्याएं बढ़ेगी, ये मेरा सोचना है। उसको मैं कैपेबल बनाऊं, उसको समर्थ बनाऊं, सामर्थ्यवान बनाऊं, पर मालकिन तो वो अपने घर की रहेगी, इस घर की मालकिन नहीं रहेगी, ये मेरी सोच। आजकल हम कई बार इसमें बेटा बेटी बराबर है, उनको बराबर पढ़ाते हैं, बराबर उनको कैरियर की अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर मालकिन तो वो अपने ससुराल के घर की ही बनेगी। इत्तेफाक से कभी शादी उसने नहीं करी तो यस, वो भी हमारे घर की मालकिन बनेगी। ये क्लियरिटी, ये आजकल बड़ा, पहले दिमाग में बड़ी क्लियरिटी थी कि बेटी उस घर की मालकिन है। आजकल इस मॉडर्न जमाने की बेटा बेटी बराबर है, बेटा बेटी कभी बराबर नहीं। ये बात मान लेनी चाहिए हमको, बेटा बेटी कभी बराबर नहीं। बेटा यहां रहेगा, अलग भी होगा तो यहां रहेगा, बेटी तो कहीं जाएगी, बराबर कैसे हुए? ये फैक्ट जितना हम आज मॉडर्न जमाने में कहने लग गए कि बेटा बेटी बराबर है, यस, दोनों हमारे दिल के टुकड़े हैं, हम उनको सब कुछ वो तैयार करेंगे, जो बेटी को तैयार करेंगे बेटी को उतना तैयार करेंगे ताकि वो अपना घर वहां संभाल सके, वो हमारा घर संभाल सके, फिर हमारे घर की इंटरफेरेंस होगी, तकलीफ आएंगी, अपना घर संभाल सके, वो कैपेबल बनाए उसको, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल सर, और ये आप कि आप इतने फोर्थराइट है, नहीं तो आज के जमाने में ये बात बोलना आसान नहीं है। और आई डोंट नो इफ एनी डॉटर्स आर लिसनिंग, बट इफ माय डॉटर वाज लिसनिंग, वो डेफिनेटली बोलती पापा ये नहीं कैसे बोल सकते। अब as we come to the end of the session, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। JBN में we have always believed that we should maintain and timings and we should respect everyone's time, so we will close on time. एक आखिरी सवाल सर, एक जन ने पूछा है कि राइट एज क्या है रिटायरमेंट होने की फ्रॉम बिजनेस? एक फादर को, एक एल्डर जनरेशन को उम्र या कोई पड़ाव हो जिस पर आदमी को अब रिटायर होने के बारे में सोचना चाहिए, और कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए so that the next generation can smoothly step into your shoes? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बड़ा डिफिकल्ट है। जब 80 साल का एक प्राइम मिनिस्टर देश को लीड कर सकता है, सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है देश को लीड करना। 80 और प्राय सब प्राइम मिनिस्टर बूढ़े ही बनते हैं। इतने बड़े देश को वो लीड कर सकता है और देश में पीएम बनने के बाद में और जवान हो जाता है, उसकी हेल्थ भी ठीक हो जाती है। मैं तो ये नहीं मानता कि व्यापार के अंदर दो बातें अलग अलग हैं कि हम व्यापार छोड़ दें या, और हम कैसे बच्चों को साथ उनको काम हस्तांतरण करें। काम हस्तांतरण करना और काम छोड़ देना, रिटायर हो जाना, व्यापार में आदमी रिटायर नहीं होता। मैं भी 74 का हो गया हूं, मैं रिटायर होना नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चों को स्पेस नहीं दे रहा, उनकी बात मान नहीं रहा। मैं अपना वहां स्थान बनाए रखना चाहता हूं। यदि मैं छोड़ दूंगा बिल्कुल काम, तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। आज मैं बूढ़ा नहीं हूं, आज 74 का भी मैं बूढ़ा नहीं हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चों के पास लीडरशिप नहीं है। मेरे बच्चों के पास भी लीडरशिप है, वो लीडरशिप भी रहे। क्या हम साथ लीडरशिप नहीं कर सकते? डेमोक्रेसी का मतलब ही है, ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना। मेरे बच्चे भी लीडर हैं, मैं भी लीडर हूं, दोनों को भेद मत करिए आप। और हम ये रिटायर होने की कोई एज नहीं होती। बच्चों को आप साथ में मौका दें, उनके रोज के काम में इंटरफेरेंस मत करें। खाली महीने की उनकी पूछ लेनी, बूझ लेनी जिसको बोलते हैं हम लोग, उनसे रिपोर्ट लेनी, उनको गाइड करना, और गाइड भी कब करें उनको मालूम नहीं पड़े गाइड कर दिया मुझे। वो स्पेस मेरे बच्चों के पास आज भी है, आज से 10 साल पहले भी थी।
मुझे रोज का 900 पैसा खर्चने के लिए, नया प्लांट लगाने के लिए, नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पर वो डिपेंडेंट नहीं है। मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, सलाह मैं लेता हूँ, ये काम करें या नहीं करें। वो खुद कैपेबल है, मैंने कैपेबल इतना रखा है उनको। तो अब ये लीडरशिप मैंने छोड़ दी या नहीं छोड़ी, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। लीडरशिप मेरे बच्चों के पास भी है और लीडरशिप मेरे पास भी है। मैं भी काम देखता हूँ, वो भी काम देखते हैं, दोनों खुश हैं। दोनों खुश हैं, ये ही पोजीशन रहनी चाहिए। हाँ, तो ये संदेश सबके लिए है और हम सबके लिए लागू होता है। There is no age for retirement. Only your roles in the business change. आप एक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव से धीरे धीरे निकल के आप एक स्ट्रेटेजिक और एक ओवरव्यू रोल में आ जाते हैं। एंड आई थिंक सो ये पाथ हम जैसे जैसे हमें लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, हम स्मूथली अगर इस पाथ को प्रोग्रेशन पर जाते हैं, सो बिना रिटायर हुए भी हम अनफ स्पेस दे सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, एंड वी कैन वर्क टुगेदर। और मैं एक काम पूरा सॉरी बीच में बता रहा हूं कि मैंने आज तक ये कर रखा है कि मैं चला जाऊं यदि कल, तो मेरे काम सफर नहीं करेगा। मेरे बच्चों को मेरा सारा काम मालूम है। यस, वो तकलीफ नहीं है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। मेरे काम की पूरी नॉलेज मेरे बच्चों को ऑलरेडी है। मैं कल चला जाऊं और 20 साल नहीं जाऊं, वो तकलीफ नहीं है कि मैं वो काम कैसे चलेगा बाद में। वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मेरे पूरे काम को कहाँ क्या रखा है, क्या काम है क्या नहीं है, वो उनको मेरे से ज्यादा अच्छा मालूम है। आज डिपेंडेंस मेरी उनके साथ है, उनकी डिपेंडेंस मेरे पे नहीं है। अब लीडर वो है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, या मैं लीडर भी हूं या नहीं हूं, पर मेरा काम उनके बिना नहीं चलता, उनका काम मेरे बिना चलता है। ये पोजीशन आज भी हमने बना रखी। आई एम डिपेंडेंट अपॉन देम। मैं अपने लीडर भी मानता हूं, डिपेंडेंट उनके ऊपर हूं। लीडर मानता हूं और डिपेंडेंट उनके ऊपर हूं। मेरे बिना काम चलता है, ये पोजीशन कर रखी है हमने, और काम मैं भी करता हूं। वो मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, मेरा कहा मानते भी हैं। अब ये लीडरशिप है या नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। बट आपने बहुत सही बात बोली, और आई थिंक सो ये सबके लिए मैसेज है दैट आप लीडर होते हुए भी you have to work with people, and more important है रिटायरमेंट की कोई एज हो या ना हो, लेकिन आपको ये जो ह्यूमिलिटी हम देख रहे हैं फ्रॉम अ मैन हु हैज बिल्ट एवरीथिंग हिमसेल्फ, so such a big empire, and this is not only an empire which the Jain community is proud of, it's an empire which the country is proud of. आज ये प्लास्टिक्स में उनका जो नाम है और जो इवन ग्लोबल स्केल पर जो काम कर रहे हैं, स्टिल वो इंसान ये कहते हैं कि आई एम ऑल्सो इक्वली डिपेंडेंट ऑन माई नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर ये सोच आती है, आई थिंक सो हार्मनी की सबसे बड़ी सोच है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। किसी का कोई स्किल सेट है, किसी का कोई स्किल सेट है, और अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी दिस फैमिली बिजनेस विच इज अ कंसेप्ट will grow and get you much more stronger than any other professionally run company in the world. But you have to have that mindset. अक्सर ये होता है कि हमें दूसरे के ग्रोथ से तकलीफ नहीं है, लेकिन अपने परिवार वाला अगर कोई ग्रो करता है हमें बड़ी तकलीफ होती है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर परिवार वाले ग्रो करेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। कभी अगर हमें दिक्कत होगी, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, हमें दिक्कत होगी तो अगर हमारे आसपास लोग हैं who are doing well, only then they can help us. It's never helps to have weaker people around you. It's always important to have stronger people around you. अगर एक रेस भी देखते हैं तो जब एक गोल्ड वर्ल्ड चैंपियन को ट्रेन करते हैं तो उसके साथ वो 400 मीटर दौड़ता है तो उसके साथ 200 मीटर दौड़ने वाले रनर्स अलग होते हैं, ताकि उस पर इतना प्रेशर बने कि ही वो इंचेस फॉरवर्ड। सो आई थिंक सो लेट्स इट्स मतलब मैं खुद पर्सनली आज कई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा हूँ, some very very interesting things, and I'm sure जो जिस टाइप के चैट्स में कमेंट्स आ रहे हैं जो आप लोग देख भी पा रहे हैं, आई थिंक सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिस सिंप्लिसिटी से उन्होंने बात समझाई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई बड़े शब्द नहीं, और ऐसी चीजें बताई जो मैंने भी एक किताब लिखी और मैं हमेशा ये मानता हूँ, मैं आपको सर वो किताब भेजूंगा भी एड्रेस लेकर। मानता हूँ वी शुड टॉक अबाउट स्मॉल थिंग्स विच एवरीवन कैन डू। टिपिकली जब कोई मोटिवेशनल स्पीच होता है हम इतनी बड़ी बात करते हैं कि वो हम अपनी जिंदगी में लाने के लिए हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि आधे लोग सुनते हैं, वाह वाह करते हैं और चले जाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने जो मेंटर का प्रोग्राम रखा है, इसका मेन ध्येय यही है कि हम कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स अपने ऑडियंस को, अपने मेंबर्स को, अपने भाई और बहनों को दे सके, जो वो अपनी जिंदगी में कल सुबह क्या अभी से उतारना शुरू कर सके। A mentor is not one who gives ज्ञान, a mentor is one who gives actionable points and answers your questions, and that is why हमारा mentorship program इसी बेसिस पर चल रहा है। बिफोर वी एंड आपको 1-2 मिनट और कहूंगा, 2 सूचनाएं हैं। विल बी हैविंग, हाँ बोलिए सर। मैं मुझे एक आधी बार समाप्त बात करनी है। मुझे अपनी 50 साल पुरानी बात याद आती है। दरिया की छोटी दुकान थी हमारी, अच्छी दुकान चल रही थी, रेफ्रिजरेशन की दुकान थी। हम अपने हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से ठीक काम कर रहे थे। शाम को जब मैं घर गया तो मेरे पिताजी मेरे से बहुत नाराज, पंजाब रहते थे पहले, वो आए मेरे पास, मेरे को सामान पैक करो और गांव चलो, बहुत नाराज मेरे से। मैंने कहा कोई हम गलती नहीं कर रहे, क्या बात है, क्यों नाराज हो गए? बहुत मनाने के बाद मुझे एक बात बताई उन्होंने, तुम ये कमाता किस लिए है? रोटी खाने के लिए। रोटी तुम खाता नहीं तो कमाता किस लिए? रोटी तो खाता नहीं टाइम से तो कमाता किस लिए? इसे तो मैं तेरे गांव में तुम्हें रोटी खिला दूंगा। उस दिन मैंने पिताजी से वायदा किया कि हमारा पर्पस काम का क्या है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। पहले हमारा अपना शरीर, हमारा परिवार की खुशियां, व्यापार सेकेंडरी। कब व्यापार हमारा हावी हो जाता है, अपने हम परिवार को छोड़ अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। मुझे पिताजी को उस दिन किया हुआ वादा कि मैं खाना टाइम से खाऊंगा, आज भी जब 1:15 बजता है, 1:30 बजता है, तो हम खाना खाने बैठ जाते हैं पक्का। मुझे पिताजी की बात याद आती है, पर्पस कमाने का क्या है, व्यापार करने का पर्पस क्या है? व्यापार करना पर्पस नहीं है, पर्पस अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की अच्छी तरक्की करना, खुशी से रहना, वो नहीं भूलना कभी भी हमें। कोई भी व्यापार करें, छोटा करें बड़ा करें, हमारे अंदर की खुशी, हमारे परिवार की खुशी, हमारे परिवार का आपस का सामंजस्य, ये हमारा बढ़ाना काम करने का पर्पस है। एक बात। दूसरी बात में एक बात चाहता था करना, दुनिया में व्यापार में शाश्वत क्या है? व्हाट इज एटर्नल ट्रुथ इन बिजनेस इज ओनली चेंज। परिवर्तन ही केवल शाश्वत है। जो परिवर्तन का पूर्वानुमान लगा सके वो आदमी भगवत पुरुष। जो परिवर्तन के साथ में अपने आप को बदल सके वो आदमी बहुत सफल। और जो परिवर्तन के साथ में अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे परिप्रेक्ष्य को, अपने पूरे साथियों को भी, उनका दिमाग भी ठीक कर सके, वो बहुत सुखी और सफल। दुनिया में सिर्फ सत्य केवल है परिवर्तन। एवरीथिंग विल चेंज, आवर थॉट विल आल्सो चेंज, आवर थॉट विल आल्सो चेंज। मुझे भी अपनी बात की, 20 साल पुरानी बात के ऊपर हंसने की आज मजा आना चाहिए कि मैं ऐसा सोचता था। मैं आपकी बात पे नहीं हंसू, अपनी बात पे हंसू, मैं ऐसा सोचता था। ये भी एक सत्य है। और आपने, मुझे अच्छा लगा संजय जी, आपने जितना प्रोफेशनली प्रोग्राम को रन किया, आई एम रियली सल्यूट यू। आप बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और मुझे भी बहुत खुशी, संतोष है कि मैं भी कितना ठीक जवाब दे सका, नहीं दे सका। मेरी भी ये ट्रायल थी आज, लगता था मैं किसी परीक्षा में बैठा हूं। आपके जवाब देने आसान नहीं थे, आपके जवाब देने आसान नहीं थे। मेरी भी परीक्षा हो रही थी, रिजल्ट आना बाकी है, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, मैंने अपने मन से, बड़े मन से जवाब दिए, वो सत्य थे या नहीं थे मैं नहीं मानता, रिजल्ट तो आने से मालूम पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने इतना अच्छा प्रोग्राम की शुरुआत करी है, ऐसे प्रोग्राम बहुत करते रहिए। और जो जीतो ने और जेबीएन ने खास करके जो पूरे जैन समाज को बिना किसी संप्रदाय रहित होने के बाद में जो जोड़ के रखा है, ये बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। जुड़ाव हमारा संप्रदाय से ऊपर बढ़े, हमारा भाईचारा, पहले हम जैन है, फिर तेरापंथी स्थानकवासी मंदिर मार्गी है। ये बात जीतो ने, जेबीएन ने बहुत बढ़ाई है। ये हमारा नारा बढ़ना चाहिए, हमारी एकता ये बढ़नी चाहिए, हमारे कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए। और जो आपने मैं भी अपने रिजल्ट की इंतजार करूंगा कि मैंने आज कैसा परफॉर्म किया। मुझे भी मार्क्स मिलने हैं, ऐसे मिलेंगे। सर आपका रिजल्ट अभी चैट बॉक्स में दिख रहा है। इंस्टेंटली इतने सारे मैसेजेस आए हैं, 100 on 100, नो डाउट अबाउट इट। बहुत ही बढ़िया रहा सर इंटरेक्शन। और फैमिली मैनेज बिजनेसेस में इतने सारे ब्लॉग्स जब हम लोगों से बात करते हैं तो सुनते हैं, लेकिन वो सारी चीजों को आपने इतनी सरलता से समझाया है और इट्स सो प्रैक्टिकल टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट। सो थैंक यू सो मच आपको और संजय जी को ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर मेंटरशिप टीम, एंटायर जेबीएन टीम। बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहा है। और जिन लोगों ने मिस किया है, आई वुड रिक्वेस्ट सिद्धेश टू पोस्ट इट ऑन द यूट्यूब एंड शेयर द लिंक इन ऑल द ग्रुप्स
सो आप जिन जिन बिजनेस फैमिलीज को जानते हैं, प्लीज उनके साथ शेयर करिए these words of wisdom. Please make sure that we share with maximum people, whether Jain, non-Jain अलग बात है, लेकिन शेयर करिए सर का जो विजडम है. 100% काफी सारे फैमिली बिजनेसेस में they can bring lot of synergy and synchronization. So thank you and over to you Sanjay ji for the closing remarks. बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा आपने, मुझे बहुत खुशी है, मुझे आपने बहुत अच्छा लगा मुझे बोल करके. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. वो शब्द बोलना चाहूंगा ऑडियंस को बिफोर वी पार्ट एंड एंजॉय आवर संडे. हमारा नेक्स्ट मीट टू मेंटर सेशन 28 फरवरी संडे को, रविवार को इसी टाइम होगा. एंड वील हैव अनदर डायनेमिक पर्सनालिटी गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ टू ऑल ऑफ यू. एंड उसके अलावा हमारा 1-to-1 मेंटरिंग का जो प्रोग्राम है, we will be launching our website in about a month's time, जहां आप मेंटर बन सकते हैं, मेंटी बन सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं. और अंत में अपनी एक बात, चेंज की बात की, मैं उस पर एक थोड़ा सा और कुछ एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा. I grew up knowing change is the only constant. मैं बड़ा हुआ यही जानते हुए कि परिवर्तन ही अनिवार्य है. But आज today I say change is not only a constant, it is a compulsion. We have no choice but to change today. And if we really need to grow, we need to really learn how to disrupt, because the new norm is going to be disruption for leaders. Change is going to be a normal thing for each of us. Otherwise, we'll not even survive. So with these last words, I thank you all of you very much. As Jito Business Network mentorship program की तरफ से आप लोग का धन्यवाद. And as chairman, I really thank you. At short notice, नंबर चेंज होने के बावजूद भी आप लोग इतने बड़े में ज्वाइन किए. और ऑलरेडी मुझे पता है कि YouTube पे ऑलरेडी लोग इस प्रोग्राम को देखना ही शुरू कर चुके हैं, लिंक को दबाकर. सो थैंक यू वेरी मच सर. और आपसे मैं आपसे एड्रेस लेके अपना किताब भी भेजूंगा, और आप जब भी दिल्ली पधारेंगे तो एक लंच या डिनर के लिए मैं आपके घर आऊंगा सर. जी जी, ये बहुत खुशी की बात है. ये मेरा आज का इनाम है, ये मेरा आज का इनाम है कि आप मेरे घर पे आए. ये मेरा आशीर्वाद है जो मैं आपसे मांग रहा हूँ. थैंक यू बहुत सो अच्छा. मच. तो मेरा सादर जजमेंट. और रिकप्तन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वैसे भी. पापा से तो बहुत सुन चुका हूँ आप. बहुत सहज है. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय.